नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 39। देहे पंचत्वम् आपन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहांतरम् अनुप्राप्य प्राक्तनं त्यज्यते वपुः। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: When the present body turns to dust and is again reduced to 5 elements, earth, water, fire, air and ether, the proprietor of the body, the living being, automatically receives another body of material elements according to his fruitive activities. When the next body is obtained, he gives up the present body. Purport: This is confirmed in Bhagavad Gita, which presents the beginning of spiritual understanding. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yavanam jara tatha dehantara prapti dhiras tatra namuhyati. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. It is not the material body. Rather, the material body is the covering of the living being. Bhagavad Gita compares the body to a dress and elaborately explains how one changes dresses one after another. The same is too old to continue. The living being gives up this body and by the laws of nature automatically gets another body according to his fruitive activities, desires and ambitions. The laws of material nature control this sequence, and therefore as long as the living entity is under the control of external material energy, the process of bodily change takes place automatically according to one's fruitive activities. Vasudeva therefore wanted to impress upon Kamsa that if he committed this sinful act of killing a woman, in his next life he would certainly get a material body, still more conditioned to the sufferings of material existence. Thus, Vasudeva advised Kamsa not to commit sinful activities. One who commits sinful activities because of ignorance, tamoguna, obtains a lower body. Karanam gunasangasya sad asad yoni janmasu. There are hundreds and thousands of different species of life. Why are there higher and lower bodies? One receives these bodies according to the contaminations of material nature. If in this life one is contaminated by the mode of ignorance and sinful activities, duskriti, in the next life, by the laws of nature, one will certainly get a body full of suffering. The laws of nature are not subservient to the whimsical desires of conditioned soul. Our endeavor, therefore, should be to associate always with Sattva-guna and not indulge in Rajoguna or Tamoguna. Rajastamo bhava. Lusty desires and greed keep the living entity perpetually in ignorance and prevent him from being elevated to the platform of Sattva-guna or Suddha Sattva-guna. One is advised
to be situated in Suddha Sattva devotional service, for thus one is immune to the reactions of the three modes of material nature. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitanscha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. तो यहाँ हम देवकी और यहाँ हम वसुदेव और कंस का जो प्रसंग है इसकी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कंस जब देवकी माता को मारने के लिए उद्धृत हुआ तो उस समय वसुदेव देवकी के प्राणों की रक्षा हेतु कुछ कंस को समझा रहे हैं और अलग अलग तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, कारणों को प्रस्तुत कर रहे हैं और कंस को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों उसे देवकी को नहीं मारना चाहिए, देवकी के प्राणों को नहीं लेना चाहिए, कि देवकी को क्यों छोड़ देना चाहिए। तो इससे पहले वसुदेव जो हैं वो बताते हैं कंस को, हमने पूर्व श्लोकों में देखा कि किस प्रकार जो व्यक्ति है जब जन्मता है, उसका जब जन्म होता है तो उसकी मृत्यु जो है वो साथ में ही जन्म ले लेती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता है, मृत्यु जो है वह अटल है। तो जो जब मृत्यु अटल है तो मृत्यु से कंस को भयभीत होने का कारण नहीं है, क्योंकि वह जो है देवकी को मार कर भी वह अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। और यहां पर वसुदेव बता रहे हैं कंस को कि यह शरीर जो है वह पंच महाभूत का बना हुआ है। बता रहे हैं कि when the present body turns to dust and it is again reduced to 5 elements, earth, water, air, fire and ether, the proprietor of the body, the living being, automatically receives another type of body of material elements according to his fruitive activities. तो वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वह इस शरीर को त्यागने के उपरांत वह जो है दूसरा शरीर को धारण करता है, और दूसरा शरीर को धारण करना वो उसके नियति के अनुसार होता है। जिस प्रकार की वो चेतना को बनाता है, जिस प्रकार अपनी चेतना को बनाता है, जिस प्रकार के कार्य करता है, कर्म करता है, उसी प्रकार का चेतना का शरीर उसे पुनः प्राप्त होता है। इसलिए वसुदेव कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि जीव को जिस तरह की चेतना को वह डेवलप करता है, जिस तरह की चेतना को विकसित करता है, उसी प्रकार की चेतना का वो शरीर दूसरे जन्म में वो ग्रहण करेगा। इसलिए उसे चाहिए कि वो देवकी को ना मारे, क्योंकि देवकी को मारने से, चूंकि यह एक जघन्य अपराध है, इसलिए इस अपराध के कारण, इस पाप के कारण उसके जो कर्म हैं वो और ज्यादा निकृष्ट हो जाएंगे और फलस्वरूप उसे इस प्रकार का शरीर देह प्राप्त होगा जिसमें कि उसके कष्ट जो हैं वो ज्यादा होंगे, जिससे कष्ट को ज्यादा भोगना पड़ेगा। इसलिए वो देवकी को मारने से परहेज करें, देवकी को नहीं मारे।
और इस प्रकार जो है वो कंस को वसुदेव जो है समझा रहे हैं। और यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो जो वस्तुतः जो जीवात्मा है वह शरीर को ही परिवर्तित करता है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रभुपाद भगवद गीता से कोट करते हुए बता रहे हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो जिस प्रकार देही जो है जीवात्मा शरीर का परिवर्तन करता है कौमार अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय में दूसरे देह को प्रवेश करती है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति धीर है, ज्ञानवान है, वह इस प्रकार के बदलाव से वो विचलित नहीं होता। तो वस्तुतः शरीर जो है वह परिवर्तनशील है और आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा जो है अजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जो है वह अनबॉर्न है, उसका कोई अजन्मा है, अजो नित्य है, वह नित्य है, शाश्वत है। यम पुराणो, वो जो है पुराण है। और इस प्रकार शरीर के मरने पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो हम वस्तुतः प्रति क्षण शरीर को बदल रहे हैं। हम जो भी चीजों को ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं, हम सांस लेते हैं, और हमारे शरीर में जो है क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर होते रहती है। और इस क्रिया प्रतिक्रिया में जो है हमारे शरीर में नए कोशिकाएं जो है जन्म लेते हैं और पुरानी कोशिकाएं जो मरती हैं। इस प्रकार प्रति क्षण जो है हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। परंतु यह परिवर्तन जो है काल के प्रभाव में जो परिवर्तन है, ये इतना सूक्ष्म है कि जीव को पता नहीं चलता है। जीव से समझ नहीं पाता है कि किस प्रकार से यह परिवर्तन जो है वह निरंतर यह परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहा है। हम देखते हैं कि बचपन से हमारे शरीर में जब से हमारा जन्म होता है, प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन प्रतिदिन होता है। और हम छोटे होते हैं तो उस समय जो हम वस्त्र पहनते हैं, बाद में वो वस्त्र छोटा हो जाता है क्योंकि हमारा शरीर जो है उसका आकार बदल जाता है। और उसी को जो है यहाँ भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वाशाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। कि जिस प्रकार व्यक्ति जो है वह पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। तो यह जो देहांतर है, जो है देह का जो परिवर्तन है, यह नित्य है। जब तक जीव इस संसार में बद्ध है, जब तक वह अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने का प्रयास कर रहा है, जब तक वह अपने इच्छाओं को, डिक्टेशन को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी उस चेतना के अनुसार उसे प्रकृति जो है वो दूसरा शरीर प्रदान करती है। और जीव के उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, यह जीव के हाथ में नहीं है, क्योंकि यह जो है वो प्रकृति इसको नियंत्रित करती है। भौतिक प्रकृति जो है वो उसको नियंत्रित करती है। जिस प्रकार के वो चेतना को विकसित करता है अपने जीवन में, उस प्रकार की चेतना का शरीर उसे प्रकृति उसे प्रदान कराती है। और उस चेतना को विकसित उसके कर्मानुसार जो है, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके जीवन में दुख और सुख जो है वो भी प्रकट होते हैं। तो जीवन में जो दुख और सुख है, किस प्रकार का हमें शरीर प्राप्त होगा, देह प्राप्त होगा, किस प्रकार की हमें योनि प्राप्त होगी, वह जीव के नियंत्रण में नहीं है। जीव के नियंत्रण में सिर्फ इतना है कि वो अपनी चेतना को परिवर्तित कर सके। और जब हम अपनी चेतना को परिवर्तित करेंगे तो हमारी चेतना के अनुसार जो है वो हमें देह प्राप्त होगा। इसलिए जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन आता है पद्म पुराण में, तो ये जो सारी योनियां हैं वह जीव की चेतना के अनुसार उसका निर्धारण होता है। वो सभी योनियों में हम देखते हैं, जैसे वृक्ष हैं,
वनस्पति है तो उनमें बहुत कम चेतना होती है। उसी प्रकार जो जीव हैं, जलचर है, पक्षी है, उनमें चेतना विकसित होती है। और जो मनुष्य, उसके बाद फिर जो जानवर हैं जैसे गाय है, उसमें चेतना और विकसित होती है। और उसके बाद जो है जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे मैंने गाय का उदाहरण दिया, तो गाय में जो है वो चेतना ज्यादा दूसरे जीवों के, दूसरे जो जीव हैं, निम्न जीव हैं, उनकी तुलना में गाय में चेतना ज्यादा होती है। हम देखते हैं गाय जो है मनुष्य से आदान प्रदान करती है, मनुष्य की बात को समझती है, उसके संकेतों को समझती है, और इस प्रकार वो मनुष्य के साथ रहती है जैसे कि वो एक परिवार का ही एक अंग है। तो यह जो 84 लाख योनियां हैं उसका निर्धारण जो है वो चेतना के अनुसार है, और किस प्रकार का देह जीवात्मा प्राप्त करेगा वह भी उसकी चेतना के अनुसार उसका निर्धारण होता है। तो यहाँ वसुदेव बता रहे हैं कंस को कि तुम यदि अपने कर्मों को और निकृष्ट बनाओगे तो उसके फलस्वरूप जो तुम्हें देह प्राप्त होगा दूसरे जन्म में, वह देह जो है और निकृष्ट होगा, और तुम्हें कर्मों के फल को ज्यादा भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि यदि आप देवकी को मारकर आप सुखी हो जाओगे, ये ऐसा नहीं है। आजकल जो आधुनिक संसार में हम देखते हैं कि लोग जो हैं इन सभी चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं। जो बहुत कम लोग जो हैं इन सभी चीजों को ध्यान रखते हैं। अधिकांश लोग, साधारणतः लोग जो हैं वो अपने एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटीज से प्रवृत्त होकर वो अपने कार्यों करते हैं। उनके जो पशुवत जो उनकी प्रकृति है उससे प्रेरित होकर वो कार्य करते हैं। जैसे खाना है तो कुछ भी खाना है, और पहनना है तो कुछ भी पहनना है, और ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं जो अक्सर हम देखते हैं, तो लोग जो हैं इन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। तो वह जो है एक सिविलाइज्ड जो मनुष्य है उसका कार्य नहीं है। जो सिविलाइज्ड मनुष्य है, जो जिस मनुष्य में विवेक है, वह जो है वह नीति के अनुसार अपने जीवन को निर्धारित करता है, अपने जीवन को चलाता है नीति नियमों के अनुसार। और जो व्यक्ति, उसकी चेतना जो डल होती है, अधम होती है, तो वह जो है अपने पशुवत प्रवृत्तियों के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। तो जिस प्रकार का चेतना व्यक्ति डेवलप करता है, विकसित करता है, उसी प्रकार का चेतना का शरीर उसे प्राप्त होता है। समाज में जो भी नियम बनाए गए हैं, जो विधान दिए गए हैं, शास्त्र में जो भी विधान दिए गए हैं, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि व्यक्ति जो है वो अपनी चेतना को धीरे धीरे विकसित कर सके। तो जैसे हमें 4 नियम दिया गया है कि मांसाहार मत करो, जुआ मत खेलो, नशा मत करो, और पर स्त्री संग मत करो। तो ये 4 चीजें दी गई हैं। यह 4 चीजें जीव को, मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यदि कोई मनुष्य अपने पशुवत प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर वह 4 नियमों को तोड़ता है तो उसका जीवन पशुवत है। वह जो है वो पशु के 4 पांव होते हैं, इसके 2 पांव है, तो वो द्विपाद पशु है, वह उसका जीवन पशुवत है। लेकिन जो व्यक्ति सिविलाइज्ड होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन, जिसके जीवन में नीति नियम होते हैं, जो नीति के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, तो वो इन 4 नियमों का पालन करता है, जिससे कि जीव की चेतना का विकास होता है। तो शास्त्र में जो नियम दिए गए हैं, जिसके अनुसार से समाज की रचना की गई है, वर्णाश्रम, विशेषकर वर्णाश्रम की रचना की गई है, तो वर्णाश्रम इसलिए बनाया गया है जिससे कि हम अपनी चेतना को धीरे 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 विकसित कर सकें, और अपनी चेतना का उत्थान करके हम भगवान से अपने संबंध को जोड़कर हम भगवत धाम जा सके। तो इसलिए ये जो वर्णाश्रम सिस्टम जो है ये दिया गया है, कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि हम अपनी चेतना को धीरे धीरे विकसित करें। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन का नाम रखा कृष्ण भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जहां एक भक्तों का समुदाय, एक भक्तों का संघ, जहां पर कि कृष्ण की चेतना को हम विकसित करने का प्रयास करें। विकसित करने के लिए हम
उसको सीखें, उस मार्ग पर हम अग्रसित हों। तो इस प्रकार जो है जीव को, मनुष्य को विशेषकर अपनी चेतना को विकसित करना होता है। और जब मनुष्य अपनी चेतना को विकसित करता है और पूर्णतः कृष्णमय चेतना में स्थित रहता है, तो वह उसके जीवन की पूर्णता होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि one who commits sinful activities because of ignorance, tamoguna, obsessions, or lower body, karanam gunasangyasya sad asad yoni janmasu। तो हम जो भी प्रकार के कार्य करते हैं, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जार गुणान, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मशु। तो जो जीव जिस प्रकार की चेतना को वह विकसित कर रहा है, उस प्रकार की चेतना को वो, उस प्रकार की चेतना को के योनि को वो प्रविष्ट होगा, उसको वो स्वीकार करेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति निकृष्ट कार्यों में प्रवृत्त है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो निकृष्ट कार्यों में प्रवृत्त है, अर्थात तमोगुणी है, तो उसे तमोगुणी चेतना का देह जो है वो प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति रजोगुणी कार्य कर रहा है, तो वो उसे रजोगुणी, उसके दूसरे जीवन में रजोगुण के शरीर देह को वो प्राप्त करेगा। और यदि कोई व्यक्ति सात्विक है, तो उसे सत्व गुण का देह जो है वो उसे प्राप्त होगा। तो भगवद गीता में बताया गया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिसा अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो सत्वगुणी है वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, उन्हें ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। और जो रजोगुणी व्यक्ति हैं उनको इसी संसार में देह प्राप्त होता है। और जघन्य गुण वृत्ति सा, अपने वृत्तियों के अनुसार जो है जघन्य जीव योनियां किसको प्राप्त होती है, तो अधो गच्छन्ति तामसा। जो तामसी व्यक्ति हैं उनको जघन्य जीवों का जो योनि है वो प्राप्त होता है, वो नीचे के लोग उन्हें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से जिस प्रकार की गुणों को हम विकसित करते हैं, उस प्रकार के गुणों का देह हम जीवन में अगले जीवन में हम प्राप्त करते हैं। इसलिए जीव को चाहिए कि वह जो है वो सत्व धीरे धीरे अपने को धीरे धीरे स्वयं को वो सत्व गुण की तरफ वो लेकर आए। हम देखते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग जीव को सत्व गुण की तरफ लेकर आता है। जैसे भक्ति में कोई भी कार्य करते हैं, जैसे भक्ति में कार्य जो है जिसमें कि हम भक्तों का संग करते हैं, तो हम भजन करते हैं, अपनी साधना करते हैं। तो साधना करने के लिए उपयुक्त समय क्या होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में बताया जाता है कि आप जल्दी उठो, स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो और अपनी साधना करो, जप करो, भगवान के नाम का, पवित्र नामों का जप करो। तो जब हम इस कार्य को करते हैं तो वस्तुतः हमारे अंदर सत्व गुण जो है वो प्रवेश करती है। हम सत्व गुण में स्वयं को स्थित करते हैं कि सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, ये सभी जो है ये सत्वगुणी कार्य है। अलग अलग प्रकार के गुणों का श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही विस्तार से भगवान वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से संसार में जितने भी चीजें हैं, जो हम खाते हैं वह भी सत्वगुणी है। जो दूसरे पशु हैं वो भी जो हम खाते हैं वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में होता है। कौन सा भोज्य पदार्थ सत्वगुण में है, कौन सा तमोगुण में है, कौन सा रजोगुण में है, और किस प्रकार हमें सात्विक पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए।
तो ये सारा ज्ञान जो है भगवान भगवद गीता में प्रदान कर रहे हैं, और वो व्यक्ति के लक्षणों को भी बताते हैं, उसके चरित्र को भी बताते हैं, किस प्रकार का सत्व गुणी व्यक्ति होता है, वो किस प्रकार का कार्य करता है, सत्व गुण के प्रभाव में व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है, रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है, तथा तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसका अर्थ यह है कि जीव को स्वयं को सत्व गुण में स्थित करना चाहिए, और ये जो गुण है यह अलग अलग समय पर हमारी चेतना के अनुसार हमें प्रभाव डालते हैं। जैसे कभी कभी हम सुबह में हम सत्व गुण में होते हैं तो हमें साधना करने का, रीडिंग करने का, कथा सुनने का वो इच्छा होता है, हम कथा को श्रवण करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, दिन होता है, संध्या दिन होता है, तो दिन में जो है रजोगुण जो है वो रजोगुण बढ़ता है, और हम देखते हैं कि रजोगुण के समय में हम जब जप करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं और रीडिंग करने बैठते हैं, तो हमारा मन इतना नहीं लगता है, क्योंकि वो जो वातावरण है उसमें रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है, हमारे ऊपर भी रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। और उसी प्रकार से संध्या रात्रि होती है, तो रात्रि के समय फिर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होने लगता है। इसलिए हमें रात्रि का समय दिया गया है कि हम विश्राम करें, हम सो जाएं। तो इस प्रकार जो है हम जब सुबह में साधना करते हैं, उठते हैं और साधना करते हैं, अपने आप स्वयं को सत्व गुण में स्थित करते हैं, तो सत्व गुण के प्रभाव से हम रजोगुण और तमोगुण को काउंटर कर पाते हैं। हम स्वयं को दिन में भी अपने को सत्व गुण में स्थित कर पाते हैं, क्योंकि हमने सुबह में सत्व गुण का प्रभाव को हमने लिया है, स्वयं को सत्व गुण में रखा है। परंतु जो व्यक्ति इन सारे कार्यों को नहीं करता है, साधना नहीं करता है, सत्व गुण में आप स्वयं को स्थित नहीं करता है, तो वह जो है आध्यात्मिक जीवन में कभी भी वो प्रगति नहीं कर सकता है। बिना सत्व गुण को ग्रहण किए व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। आध्यात्मिक प्रगति जो है वह संभव नहीं है जब तक कि हम आप स्वयं को सत्व गुण में स्थित नहीं करेंगे। इसलिए भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मुने, कि जो साधारण या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, जो जब समस्त जीवों का रात्रि होती है तो वह जो मुनि है, जो एक साधक है, उसके लिए वह जगने का, उठने का समय होता है। और यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जहां पर जीव जागते हैं तो एक साधक के लिए वो सोने का समय होता है। तो इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, और भगवान को कहने का तात्पर्य है कि जिन चीजों में, जिन गुणों में जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है वो जिस उनमें संलग्न रहता है, तो वह एक साधक के लिए रात्रि है, साधक उससे दूर रहता है, साधक सोता है, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसमें वो रुचि नहीं दिखाता है। और यस्याम जागर्ति भूतानि, जो जिन कार्यों में जो एक साधक जो है वो लगा रहता है, तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो उनमें रुचि नहीं दिखाते हैं, वो उनके लिए रात्रि का समय होता है, उससे वो दूर हो जाते हैं। और यदि हम इसे लिटरली भी, यदि हम इसे शाब्दिक रूप से भी लेंगे, तो हम देखते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तास्याम जागर्ति संयमी, जिस समय सब लोग सोते हैं उस समय भक्त जो है वो अपनी साधना करता है, साधक अपनी साधना करता है। जैसे साधक जो है, साधक को चाहिए कि 4 बजे, 4:30 बजे, कम से कम 5 बजे उठे। 5 बजे के बाद साधक को नहीं उठना चाहिए। यदि साधक जो है 6 बजे, 7 बजे उठेगा तो अपनी साधना किस प्रकार से करेगा? वो अपनी साधना नहीं कर सकेगा। तो जो दुर्भाग्यवश आज इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। आज जो है विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में सिर्फ ये शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम पैसा कमाएं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करें और नरक में जाएं, इसी शिक्षा दी जाती है। और यही जीवन का सर्वस्व है, यही जीवन का ध्येय है। इसकी शिक्षा दुर्भाग्यवश आज विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। परंतु वास्तविक ज्ञान जो है, वास्तविक शिक्षा जो है, वह यह है कि हम जाने कि हम किस प्रकार संसार में
अपनी चेतना को बदल सकें और किस प्रकार हम तमोगुण और रजोगुण को त्याग कर अब स्वयं को सत्वगुण में स्थित कर सकें, जिससे कि हम साधना कर सकें और भगवान से अपने संबंध को जोड़ सकें। तो यह जो है यह वास्तविक ज्ञान है, जिस ज्ञान को आज विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मैंने बनाया है, यह पूरे विश्व का एक विश्वविद्यालय है, जहां पर कि हमें जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। मनुष्य जीवन का क्या मूल्य है, मनुष्य जीवन का क्या लाभ है और मनुष्य जीवन का क्या हेतु है, क्या लक्ष्य है, इसकी शिक्षा हमें दी जाती है। और इस प्रकार से किस प्रकार हम स्वयं को एक उचित प्लेटफॉर्म में स्थित कर सकें, जहां पर कि भक्ति को प्रैक्टिस करना, साधना को प्रैक्टिस करना सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग भक्तों के साथ रहकर वो बहुत ही सुलभ है जब हम भक्ति के मार्ग को भक्तों के संग में करते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग को इस प्रकार से बनाया गया है जिससे कि धीरे धीरे हम अपने आप को सत्वगुण में स्थित कर लेते हैं। भक्ति के जितने भी अंग हैं वो सभी शुद्ध सत्वगुण में स्थित है। वस्तुतः भक्ति जो है वो आध्यात्मिक है, भक्ति प्रकृति के गुणों से परे है, परंतु हम प्रकृति के गुणों से परे नहीं है। इसलिए हमें अभी अपने आप को तमोगुण और रजोगुण से उठाकर सत्वगुण में स्थित करना है, जहां पर कि हम साधना का अभ्यास करें, सत्वगुण में हम अपनी साधना को करें। और इस प्रकार जब हम सत्वगुण में अपनी साधना को करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना वो परिवर्तित होती है। हमारी चेतना जो है अभी जो भौतिक चेतना में है, जहां पर कि भौतिक भोगों की लालसा है हमारे अंदर, कामना है हमारे अंदर, वह धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो जाती है। और जब हमारी चेतना पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो जाती है तो हम शुद्ध सत्व में स्थित करते हैं, अपने आप को स्थित रखते हैं। हम देखते हैं जो आचार्य हैं उनकी चेतना हमेशा शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहती है, वो कभी भी भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण को देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद एक क्षण भी वो कृष्ण भावनामृत से कभी भी उनकी चेतना जो है विमुख नहीं हुई। वो प्रत्येक सिचुएशन में, यदि सिचुएशन कष्टकारक है, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसमें भी वो श्रील प्रभुपाद जो है वो स्वयं को, अपने आप को कंपोज्ड रखते थे, स्वयं अपने को स्थिर रखते थे। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण बताते हैं कि कई बार क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को पूरा विश्वव्यापी आंदोलन को चलाना था, तो कभी कभी किसी भक्त से उनको न्यूज आता था जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता था। जैसे कोई भक्त जो है वो भक्ति से जो है विमुख हो गए हैं, या मंदिर में कोई थेफ्ट हो गया है, या किसी भक्त ने कुछ गलत कार्य कर दिया है, और इस प्रकार के बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज होते थे। विशेषकर जब श्रील प्रभुपाद यहाँ मंदिर में मुंबई में जुहू मंदिर बना रहे थे तो बहुत ही संघर्षमय वो समय था। तो परंतु श्रील प्रभुपाद एक भक्त को इंस्ट्रक्शन देके कि आप ऐसा करो या ये मैसेज दे दो, ये बताने के बाद वो तुरंत भागवतम क्लास में बैठते थे और भागवतम क्लास देना शुरू कर देते थे। तो इतना आंदोलन के लिए इतना डिस्टर्बिंग चीज था, फिर भी श्रील प्रभुपाद जो है अपने आप को कंपोज रखते थे और वो भागवतम क्लास देना प्रारंभ कर देते थे। तो जो भी सृष्टि में, जो भौतिक सृष्टि में जो भी चीजें प्रकट हो रही हैं, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो सृष्टि को और इसकी प्रकृति को जानते हुए वो इन सारे चीजों से वो विचलित नहीं होते हैं, और प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में वो कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं। और श्रील प्रभुपाद जो हैं वो प्रत्येक, उनका जो पूरा जीवन था वो कृष्ण भावनामृत का था। जैसे कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम जब भक्तों के संग में होते हैं, मंदिर में होते हैं या भक्तों के साथ में होते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत को प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो हम अकेले होते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत को प्रदर्शित नहीं करते। हम कोई और कार्य में और भोग विलास में अपने को लिप्त कर लेते हैं,
क्योंकि हम सोचते हैं अभी कोई देख नहीं रहा है, कोई भक्त देख नहीं रहा है, तो हमें कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी ये अवस्था क्यों है? क्योंकि हम भौतिक चेतना में स्थित हैं और हम कृष्ण भावनामृत को करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही हम भक्तों से दूर होते हैं तो भौतिक प्रकृति जो है, जो भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं और इस प्रकार हम कार्य करते हैं। तो चूंकि यह जो अंतर है एक बद्ध जीव में और एक मुक्त जीव में, जो मुक्त जीव होते हैं वो 100% कृष्ण भावना में निरंतर स्थित रहते हैं और एक बद्ध जीव जो है वह साधना करता है, साधना का अभ्यास करता है, इसलिए उसके लिए संघर्ष होता है। यह प्रकृति के गुणों से अपने आप स्वयं को ऊपर उठाना वो उसके लिए एक संघर्ष होता है, संघर्षमय कार्य होता है। परंतु यह संघर्ष जो है, यह भक्तों के संग में यह संघर्ष जो है वो बहुत ही सुलभ हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि भक्तगण सभी एकत्रित होकर एकजुट होकर उस संघर्ष को कर रहे हैं। तो हम जब एक भक्तों को दूसरे देखते हैं, दूसरे भक्तों को देखते हैं, तो एक भक्त को दूसरे भक्तों से उस साधना के उस संघर्ष में हमें प्रेरणा मिलती है और इसलिए हम उस प्रेरणा से प्रेरित होकर हम भक्तिमय कार्य को अच्छे से करते हैं, अपनी साधना को हम अच्छे से करते हैं। जैसे हम अकेले शायद हम मंगल आरती में नहीं उठेंगे, परंतु जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमें मंगल आरती अटेंड करनी है तो हम सुबह उठकर और मंगल आरती के लिए आते हैं, क्योंकि यह जो है सामूहिक है। इसलिए हमें भक्तों का जो संग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि हम भक्तों के संग में अपने आप को रखेंगे तो धीरे धीरे यह जो प्रकृति के जो गुण है इससे हम धीरे धीरे उठ सकेंगे। तमोगुण रजोगुण से उठकर हम स्वयं को सत्वगुण में स्थित कर सकेंगे और जब सत्वगुण में स्थित करेंगे तो उस समय सत्वगुण में रहकर भक्ति में साधना जो है वह सुलभ होती है और वस्तुतः भक्ति में साधना को सत्वगुण में ही किया जाता है। यदि हम रजोगुण में हैं और हम जप करने का प्रयास करेंगे तो हम मुंह से जप करते रहेंगे, लेकिन हमारा मन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के विचारों में वो निमग्न रहेगा। तो यह जो है ये रजोगुणी जपा है। और कभी कभी क्या हम जप करते हैं और हमें नींद आता रहता है, कंटिन्यूस नींद आता है, हम 4-5 महामंत्र बोलते हैं फिर सोने लगते हैं। तो यह जो है वो तमोगुण का प्रभाव है, उसमें हम जप कर रहे हैं। परंतु जब हम भक्तों के संग में बैठकर सुबह के समय में और उत्साहपूर्वक हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो यह जो है हम स्वयं को सत्वगुण में स्थित किए हैं और सत्वं संजायते ज्ञानम, सत्व जो है जब हम सत्वगुण में आप स्वयं को स्थित रखते हैं तो ज्ञान से व्यक्ति प्रकाशित होता है, आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति जो है वो प्रकाशित होता है। इस प्रकार हमें भक्तों के संग में रखकर स्वयं को तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठाकर सत्वगुण में हमें स्थित करना है, जिससे कि हम भक्ति का साधना का अभ्यास अच्छे से कर सकें। और मैं थोड़ा श्याम सेवक प्रभु के बारे में कहना चाहूँगा। ये बहुत ही दुखद समाचार कल भक्तों के द्वारा मिला कि किस प्रकार श्याम सेवक प्रभु उन्होंने देह त्याग किया और किसी भक्त को कल्पना भी नहीं थी कि इस प्रकार ये घटना घटित हो सकती है। और श्याम सेवक प्रभु जो थे बहुत ही अभी अपने परिवार के लिए और औरंगाबाद भक्त समाज के लिए बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसकी भक्त समाज को नितांत आवश्यकता है। उसके परिवार को, श्याम सेवक प्रभु के परिवार को तो नितांत आवश्यकता है ही, परंतु जो औरंगाबाद भक्त समाज है उनको भी उनकी नितांत आवश्यकता थी। परंतु हम भगवान के जो योजना है उसको हम नहीं समझ सकते हैं। हमारी अपनी योजना होती है और कृष्ण की अपनी योजना होती है और कृष्ण अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। और ये श्याम सेवक प्रभु हैं, उन्होंने बहुत कम समय में अपने जीवन को कृतार्थ किया। बहुत ही सुंदर भक्त हैं
और जब भी मैं औरंगाबाद जाता था तो जो क्लास होता था, क्लास में बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे। कभी कभी जब मैं प्रसाद लेता था तो साथ में वो प्रसाद लेते थे, और कभी कभी मुझे प्रसाद सर्व करते थे। और उनकी जो जिज्ञासा थी निरंतर वो कृष्ण भावना भावित थी, और वो क्लास को बहुत ध्यान से सुनते थे और बहुत ही जिज्ञासु प्रश्नों को वो करते थे। और उन्हें कृष्ण भावनामृत का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अध्ययन भी था, बहुत प्रगाढ़ अध्ययन था कि कई बार जो वक्ता है क्लास में श्लोक को भूल जाता तो वो वक्ता को बताते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में जो व्यक्ति बोल रहा है उसके मन में बहुत सारे जो है विचार आते रहते हैं, तो कभी कभी श्लोक ध्यान में नहीं आता है, तो श्याम सेवक प्रभु श्लोक को बताते थे। उनका जो भागवतम का अध्ययन था बहुत ही गूढ़ था, बहुत ही गहन था। और इस प्रकार का भक्त जो इतना सुंदर जैसे कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, जो इतना सुंदर प्रचार कर रहा है, और नाना प्रकार से वह इस्कॉन आंदोलन को, औरंगाबाद भक्त समाज को सेवा करने का वो प्रयत्न कर रहा है, निरंतर वो प्रयत्न कर रहा है। तो इस प्रकार का एक भक्त को खोना यह भक्त समाज के लिए इतना बड़ा लॉस है कि जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है। वस्तुतः अभी औरंगाबाद भक्त समाज जो है बढ़ रहा है, वहाँ मंदिर भी श्री राधा नुकुंज बिहारी का मंदिर भी जो है वहाँ प्रकट हो रहा है, धीरे धीरे मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। तो ऐसे समय में हमें इस प्रकार के उत्साही भक्तों की नितांत आवश्यकता होती है, परंतु हम भगवान के योजना को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। परंतु भगवान इन भक्तों के जीवन से हमें बहुत बड़ा संदेश देते हैं। संदेश ये देते हैं कि हमें कभी भी कृष्ण भावनामृत में शिथिल नहीं होना चाहिए। हम साधारणतः यह सोचते हैं कि अभी तो हम स्वस्थ हैं और हमारे अंदर कोई रोग नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पैसा आ रहा है, परिवार में भी सब ठीक है, और मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, जीवन का आनंद भी ले रहा हूँ। इस प्रकार से जो है हम सोचकर भक्ति में, जीवन में शिथिल हो जाते हैं, और हम शिथिल हो जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि भक्ति चलेगी, अभी तो मुझे भक्ति करने के लिए जीवन में बहुत सारे साल हैं, बहुत सारे वर्ष हैं, अभी तो मैं युवक हूँ। और इस प्रकार हम माया जो है नाना प्रकार से हमें प्रलोभन प्रदान करती है, जिससे कि हम भक्ति से विमुख होने लगते हैं। तो भगवान जो है अपने लगनशील भक्त जो है, भगवान के जो लगनशील भक्त हैं, उनके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें एक क्षण भी शिथिल नहीं होना चाहिए भक्ति में। हमें एक क्षण भी भक्ति में शिथिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है। हम में से किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि श्याम सेवक प्रभु इस प्रकार से वो देह त्याग करेंगे, परंतु भगवान की योजना थी। भगवान जो है उनके योजना के अनुसार जो है भक्त के जीवन जो है चलता है। तो ऐसे कहावत है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हमारी योजना जो है हम बनाते हैं, परंतु यदि वो योजना गुरु और कृष्ण के अनुसार नहीं है तो वो योजना निश्चित ही वो योजना फेल होने वाली है, और जो भगवान की योजना है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत में शिथिल नहीं होना चाहिए। मैंने श्याम सेवक प्रभु के जीवन को देखा कि श्याम सेवक प्रभु जो भी कि गृहस्थ थे, परंतु उनका जीवन एक ब्रह्मचारी के जैसा था। वस्तुतः कहा गया है शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पत्नी के अनुसार के साथ रहता है और भक्ति में जीवन को व्यतीत करता है, साधना में जीवन को व्यतीत करता है, तो वह भी एक ब्रह्मचारी है, और वह जो है उसे गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा गया है। और जो श्याम सेवक प्रभु हैं वो एक गृहस्थ ब्रह्मचारी को वो गृहस्थ ब्रह्मचारी के जीवन को प्रस्तुत करते हैं, और किस प्रकार उनके परिवार के प्रति जो प्रेम थी, निष्ठा थी, उत्तरदायित्व था, और औरंगाबाद भक्त समाज के प्रति जो उनका अपने दायित्व को निभा रहे थे, अपने निष्ठापूर्वक वो कार्यों को कर रहे थे। और जो श्याम सेवक प्रभु उनका जो रूप था वो उनको देखकर ऐसा लगता था कि यह भक्त जो है कितना कृष्ण भावना भावित है, और उन्होंने जो है कृष्ण भावना
को विकसित करने के लिए गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचारी के समान वो बाल निकाल कर अपनी शिखा को रखते थे। यह एक गृहस्थ के लिए ही एक उदाहरण है जिसको कि दूसरे गृहस्थों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो अपने काम को करते थे और ज्यादा समय जो है उनके भौतिक जीवन जो था वो बहुत छोटा था, उनके भौतिक जो जीवन का जो कार्य थे बहुत छोटे थे, और उनका जीवन का अधिकांश जो समय था वो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भाव में लगा रहता था। जब भी हम जाते थे तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जो श्याम सेवक प्रभु मंगल आरती में नहीं उपस्थित हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो क्लास में उपस्थित नहीं है। और जब कभी सुबह मंगल आरती होती, क्लास होता था, और दोपहर में जो क्लास के बाद मीटिंग होती थी, फिर संध्या के समय क्लास होता था, तो श्याम सेवक प्रभु जो है वो प्रत्येक जगह पर वो उपस्थित रहते थे। और उनकी चेतना इतनी प्रखर थी, वो कितने कृष्ण भावना भावित थे कि कभी भी क्लास में ऐसा नहीं कि आलस्य दिखा रहे हैं, पीछे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कभी भी वो हमेशा सजग होकर वो क्लास को इस प्रकार से वो श्रवण करते थे जैसे कि उसे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को वो पूछते थे। तो उनका यह जो कृष्ण भावना भावित जीवन रहा, जिसमें कि उन्होंने औरंगाबाद भक्त समाज को की इतनी सेवा की, उन्होंने इतना अध्ययन किया, और कृष्ण भावना के प्रचार में उन्होंने इतना अपना सहभाग दर्शाया, अपना योगदान दिया। तो वस्तुतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा को स्वीकार किए, और इतने अच्छे, इतने उत्तम भक्त को वो भगवान अपने चरण कमलों में स्थान दिए, और साथ ही साथ जो दूसरे भक्त हैं उनको भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन जो है, अभी तो समय है, अभी तो मुझे और पैसा कमाना है, और मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, और हम भक्ति को कम करके हम ये सोचते हैं कि दूसरे कार्य कर लें, भक्ति तो हम आगे भी कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे। इस प्रकार जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, इस प्रकार की जो भावना होती है, इसी स्थिति में स्थित रहना है, और हमें इसी भावना में स्थित रहना है, और यह प्रयास करना है, इसके लिए संघर्ष करना है कि हम प्रति क्षण कृष्ण भावना भावित रह सकें, कृष्ण भावना में स्थित हो सके। तो यहां मैं विराम देता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।